ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہاں آپ کو خبر دیں کہ گجرات میں جماعت اسلامی کا دوسرے روز بھی احتجاجی کیمپ اور دھرنا جاری ہے۔ حکومت پنجاب کو 4 دنوں کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ چودھری انصر محمود دھول امیر جماعت اسلامی گجرات نے میٹرو ون نیوز کو بتایا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ایک گندم کی خریداری شروع نہ کی گئی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں رانا نذیر سے۔ رانا نذیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات چودھری انصر محمود دھول صاحب سے جانیں گے کہ آگے 4 روز کے بعد جو حکومت کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے کسانوں کے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ آج کا یہ احتجاج، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ میرے جماعت کی کال پہ کسانوں کے حقوق کے لیے ہے، اور یہ احتجاج ہمارا 4 دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور جو میرے جماعت نے الٹیمیٹم دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو، کہ اگر انہوں نے 4 دن کے اندر گندم کے ریٹ کو ریوائز نہیں کیا اور کسانوں کے حقوق ان کو دینے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تو 4 دن کے بعد میرے جماعت پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کی کال دیں گے۔ اور انشاءاللہ جب وہ کال آئے گی تو گجرات سے بھرپور جماعت اسلامی کا ایک ورکر، ایک کسان اور ایک رکن انشاءاللہ اسے دھرنے میں شامل ہوگا، اور ہم امیر جماعت کی کال پہ انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ اور یہ گھیراؤ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اور گورنمنٹ پنجاب جو ہے کہ کسانوں کے حقوق ان کو واپس دینے کا فیصلہ نہیں کرتی۔ جی بالکل، جب تک کسانوں کے حقوق ان تک نہیں پہنچتے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا گروہ اور پنجاب اسمبلی کا گروہ، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گروہ کیا جائے گا۔ اگر 4 روز میں ان کے مطالبات نہیں پورے ہوتے تو جماعت اسلامی لاہور کا رخ کرے گی۔ پاک پتن میں مزدوری سے انکار پر باز ہر زمیندار کا ساتھیوں کے ہمراہ زنجیروں سے باندھ کر محنت کش خاندان پر وحشیانہ تشدد سے محنت کش جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ صدر پاک پتن کے چک بھید میں ملازمت سے انکار پر علاقے کے باز ہر زمیندار سرفراز مانیکا نے ساتھیوں کے ہمراہ محنت کش زاہد کے گھر گزشتہ رات گئے دھاوا بول کر انہیں زنجیروں سے باندھ کر ڈنڈوں اور سوٹوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ بے ہوش ہونے پر زاہد اور اس کے 2 رشتہ داروں کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ دن کو دوبارہ زمیندار نے ساتھیوں کے ہمراہ زاہد کو تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے 2 رشتہ دار شدید زخمی ہو گئے۔ محنت کش کے خاندان کو کارروائی سے باز رکھنے کے لیے باثر زمیندار مقتول کی بیوہ عائشہ بی بی کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ اندھوناک واقعے پر ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت کے نوٹس پر پولیس نے باثر زمیندار سرفراز مانیکا کو ساتھی سمیت گرفتار کر کے اس کی گاڑی سے مغوی عائشہ بی بی کو بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان سے 2 کلاشنکوف بندوق، پسٹل اور سینکڑوں گولیاں برآمد کر لیں۔ زخمی اور مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس نے اسپتال منتقل کر دیا۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد شہر سے غیر قانونی پارکنگ ختم کرانے میں ناکام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ بلدیہ دفتر کے باہر بھی ناجائز پارکنگ کی بھرمار ہے اور بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ حیدرآباد سے دیکھیے شاذیب شیخ کی یہ رپورٹ۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار ہے، یہاں تک کہ بلدیہ اعلیٰ کے دفتر کی دیوار بھی غیر قانونی پارکنگ کی لپیٹ میں ہے اور افسران لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ غیر قانونی انکروچمنٹ ختم ہونے کے بجائے ہمارے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ لگا ہوا نو پارکنگ کا، لیکن اس کے نیچے جو ہے بے شمار گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے۔ بلدیہ اعلیٰ ہے جو انکروچمنٹ کروانے کا ادارہ ہے، اس کے نیچے اتنی پارکنگ لگی ہوئی تو دوسرے آدمی کیا کریں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے دفتر کی دیوار جس پر لاکھوں روپے کی لاگت سے قومی ہیروز کی تصاویر بنائی گئی تھیں وہ بھی زبوں حال ہو چکی ہیں اور دیوار کے ساتھ غیر قانونی پارکنگ لگا کر پارکنگ چارجز بھی وصول کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ کا آفس آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر باہر لکھ کے بھی لگایا ہوا انہوں نے، لیکن انہوں نے ہی اپنے آگے پارکنگ کے لگا کے ٹھیکے دیے ہوئے لوگوں کو، تو کہاں سے کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہیں کی وہیں لگی پڑی ہیں گاڑیاں۔ عدالتی احکامات کے باوجود شہر بھر میں غیر قانونی پارکنگ کے باعث سڑکوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ تجاوزات کا خاتمہ کرانے والا بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کا ادارہ انسداد تجاوزات سیل اپنی ہی ناک کے نیچے سے غیر قانونی پارکنگ ختم کرانے میں ناکام ہے۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ شاذیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔
सिंध पुलिस के ऑपरेशन के बावजूद अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी न आ सके। एक निजी डॉक्टर समेत 2 ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ रोशन अली बलोच से, जो इस वक्त कश्मोर कच्चे के इलाके में मौजूद हैं। रोशन अली, अपडेट कीजिएगा। जी, ज़िला कश्मोर में भी डाकुओं ने चोरी, डकैती, राजनी और उनके साथ साथ अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं उन कम न हो सकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कश्मोर के कच्चे के गिलपुर के इलाके में। यहाँ पे डाकुओं ने अपना रिट कायम करके रखा हुआ है। डाकू जो है आए रोज़ शहर पे और उनके नवाई इलाकों में धावा बोलकर किसी न किसी को अगवा करके बआसानी से लेके जाते हैं। मज़ीद मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि थाना कश्मोर के हदूद रखन बंगलों के मुकाम से निजी क्लिनिक के से एक डॉक्टर को भी अगवा कर लिया गया था और उनके साथ साथ गुड्डू थाना के हदूद से जो है 2 ट्रक ड्राइवरों को सताराहांडी के मुकाम से भी अगवा कर लिया गया था। डाकू जो हैं शहर में आए रोज़ धावा बोलकर बआसानी से शहरियों को मुगवी बनाकर लेके जाते हैं और मुगवी की तशद्दुद शुदा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल करके जो है उनके वर्षा के साथ लाखों रुपए तावान तलब कर लेते हैं। दूसरी जानब पुलिस के जानब से डाकुओं के खिलाफ भी मुश्तरका ऑपरेशन जारी है और सिंध रेंजर्स उनके साथ साथ उनकी भी जो है मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने जो है धावा बोलकर डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने जो है मसमार कर दिए हैं और उनके साथ साथ एक मुगवी को भी बाजियाब करा लिया गया था और 4 डाकू भी ज़ख्मी हुए थे। दूसरी जानब SSP कश्मोर बशीर अहमद बिरोई का कहना था कि जब तक ये डाकू राज ख़त्म नहीं करेंगे और जहाँ पे जितने भी मुगवी हैं उनको बाजियाब नहीं कराया जाएगा, ये ऑपरेशन भी जारी रहेगा। जी, रुक करेंगे शोरकोट का, जहां महकमा खुराक के खरीदारी मराकज़ वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। पंजाब गवर्नमेंट की गंदम न लेने की पॉलिसी की वजह से किसानों में मायूसी की लहर फैल चुकी है। तहसील शोरकोट लाखों की आबादी पर मुश्तमिल है, जिसमें महकमा खुराक की तरफ से गंदम की खरीदारी के लिए 3 मराकज़ कायम किए गए हैं, जो कि हर वक्त वीरानी का मंजर पेश करते हैं। किसान गंदम के बारदाना न मिलने पर मायूसी का शिकार हैं और गंदम खरीदारी मराकज़ और दफातर का रुख करना छोड़ चुके हैं। कहते हैं, जब हमें बारदाना नहीं दिया जा रहा तो हम रोज़ाना की मुसाफत क्यों तय करें। किसानों की दरख्वास्त है कि हुकूमत पंजाब से कि गंदम खरीदारी की पॉलिसी तब्दील की जाए, हमारी गंदम खरीदी जाए ताकि हम नुकसान से बच सकें। समुद्री पाकिस्तान आर्मी के सपूत सूबेदार उमर हयात 30 साल बाद अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए। आबाई गाँव पहुँचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया। मारूफ शायर मोहम्मद अशरफ शाकिर का कहना है कि उमर हयात ने ज़िंदगी के 30 साल सरहदों पर मुल्क व कौम की हिफाजत की, जो काबिल फ़ख्र है। कहा, पाक आर्मी से हमारा रिश्ता जिस्म की मानिंद है। इस मौके पर पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शकरगढ़ में आवाम का देरीना मुतालबा पासपोर्ट ऑफिस और नाइट शिफ्ट का इजरा कर दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना इश्तियाक से, जो इस वक्त नादरा ऑफिस के बाहर मुस्लिम लीग नून के MNA अनवारुल हक के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शकरगढ़ नादरा ऑफिस के बाहर। इलेक्शन के दौरान शकरगढ़ अवाम से किए गए वादे अब लगता है पूरे होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ MNA अनवारुल हक साहब मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो इसके हवाले से शकरगढ़ की अवाम को क्या पैगाम देते हैं। जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन में हमने वादा किया था कि यहाँ नादरा ऑफिस में हम पासपोर्ट की सहूलत 2 महीने के अंदर मुहैया कर देंगे। वो इंशाल्लाह हमने 1.5 महीने के अंदर ये सहूलत मुहैया कर दी गई है। तो ये खुशखबरी हम पहले दे चुके हैं। उसके बाद हमारा वादा था कि यहाँ हम डबल शिफ्ट का निज़ाम लाएंगे नादरा ऑफिस में, ताकि लोगों को ज़्यादा सहूलत हो जाए, उनको ज़्यादा यहाँ से आराम से काम उनका होता जाए। लिहाजा हमने अब आज के दिन डबल शिफ्ट का भी इफ्तिताह कर दी है, ओपनिंग कर दी है। तो ये शकरगढ़ शहर को मुबारक हो कि अब उनके काम उनको सहूलत से, आराम से और उनकी दहलीज पर उनके काम होंगे। लिहाजा पहले उनको नारवाल जाना पड़ा था पासपोर्ट के लिए, वो इधर ही काम हो जाएगा। लिहाजा शकरगढ़ एक शहरियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत मिल गई और हमने अपने वादे पूरे कर दिए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह जो वादे रह गए हुए हैं वो भी पूरे करेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने MNA अनवारुल हक साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी वफाक का, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का, जिन्होंने हमें ये सहूलत दी है और हमारी आवाम ने जो हमें मैंडेट दिया था, हम उस पर कामयाब होकर शकरगढ़ नादरा ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस का इजरा कर दिया। उसके बाद डबल शिफ्ट नादरा का भी इफ्तिताह कर दिया है और इंशाल्लाह हमने जो वादे किए हैं हम उनको भी इंशाल्लाह अगले अमल में पूरा करेंगे। जी।
ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के मामले पर पुलिस और ख्वाजा सराओं के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए। तशद्दुद करने वाले दोनों पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। खारियां के ख्वाजा सरा और हिरा और इसके साथी पर थाने ले जाकर तशद्दुद के खिलाफ जब पुलिस ने ख्वाजा सराओं की बात सुनने से इनकार किया तो गुजरात के ख्वाजा सरा आपे से ही बाहर हो गए और उन्होंने थाना सदर खारियां पर हल्ला बोल दिया। थाने पर पथराव किया और थाने में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। एहतजाजन जीटी रोड ब्लॉक कर दिया और पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ख्वाजा सराओं के एहतजाज पर आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और डीपीओ सैयद असद मुजफ्फर ने दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ख्वाजा सरा हिरा की रिपोर्ट पर कांस्टेबल उमर बिलाल और एक नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ सदर खारियां बिलाल शाह ने ख्वाजा सराओं से मुज़ाकरात की यकीन दिलाया कि जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने की भी यकीन दहानी करवाई गई। खबर दें आपको, सादकाबाद में होम सेक्रेटरी पंजाब का कच्चे में दौरा। आरपीओ भावलपुर राय बाबर सईद ने होम सेक्रेटरी पंजाब को कच्चे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद जान लेते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। होम सेक्रेटरी पंजाब के कच्चे के मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कुछ कच्चा पहुंच गए। आरपीओ भावलपुर और डीपीओ के होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन को मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर आरपीओ भावलपुर का कहना था कि कच्चे में एक कामयाब ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस के जवानों का नजराना पेश करते हुए अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। कच्चा के ऑपरेशन में पुलिस के 3 जवान खतरनाक क्रिमिनल्स के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नौश कर गए, जबकि पुलिस के 20 जवानों ने कच्चा क्रिमिनल्स को शिकस्त देने के दौरान गाजी का लक़ब पाया। कच्चा भोंग माचका से दर्जनों क्रिमिनल्स गैंग्स को मार भगाया। अब तक 40 खतरनाक डाकुओं पुलिस मुकाबलों के दौरान अपने मंतक़े इंतजाम को पहुँचे। 36,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा वागुज़ार करवा दिया गया और अमन व अमान के तसल्सल को बरकरार रखते हुए पुलिस कच्चा में पूरी कुव्वत और सामान हर्ब के साथ मौजूद है। जबकि डीपीओ रहीम अरकान का कहना था कि पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए है। पुलिस ने मुल्क भर से ट्रैप कर आने वाले 429 अफराद को सिंध के डाकुओं के हाथों अगवा होने से बचा लिया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने मोर्चा बंद जवानों से मुलाकात करके इनकी हौसला अफजाई की। कच्चा के क्रिमिनल्स के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले नौजवान हमारे कौमी हीरोज़ हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, बेटर वन न्यूज़, सादिकाबाद। तांलियावाला में कुसिया बतूल ज़िया ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का सरप्राइज़ विजिट किया। उन्होंने मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का जायज़ा लिया। इस मौके पर कुसिया बतूल ज़िया ने कहा कि हम वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ के वेटरन विज़न के मुताबिक अब शहरियों को सेहत और सफाई प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, जिसमें शहरियों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर्स की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए अवामी नुमाइंदे किसी भी वक्त अस्पताल का सरप्राइज़ विजिट करेंगे और वहाँ सहूलियात का जायज़ा लेंगे। शहरियों ने कुसिया बतूल ज़िया के इस काविश को सराहा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल में नए तामीर होने वाले इमरजेंसी का काउंटर और वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक़ा दौर में गंदम की खरीदारी के मुआहदे में घपले करने वालों के खिलाफ तहकीकाती कमेटी बनाकर मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दिया गया है। उनका कहना था पीपल्स पार्टी के साथ हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं उम्मीद करता हूँ वो हमारी काबीना का हिस्सा बनेंगे और तामीर वतन के इस सफ़र में हम उनके तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी की जानिब से रेलवे स्टेशन रोड पर लगाई जाने वाली लाइट्स का भी इफ्तिताह कर दिया गया। प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल कैंसर, फेफड़ों, सांस की बीमारियों और फ़ज़ाई आलूदगी का बड़ा सबब है। इसके इस्तेमाल पर पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं यूसुफ रज़ा भट्टो की इस रिपोर्ट में। प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो एक से कई कीमती अज़ात से मिलकर तैयार होता है। प्लास्टिक के लिफाफों में एक जहरीला मादा होता है जिसकी वजह से हम खालिस ग़िज़ा से महरूम होकर कई मुज़ी अमराज़ का शिकार हो जाते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक जब हम बाज़ार से गर्म खाना लेकर प्लास्टिक के बैग्स में डालते हैं तो खाने की गर्मी की वजह से बैग्स में मौजूद मुज़र सेहत अज्जा पिघल कर खाने में शामिल हो जाते हैं, जो कि कैंसर, फेफड़ों और सांस की बीमारियों का सबब बन जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के ये बैग्स माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बहुत बड़ा सबब हैं।
जिन्हें ठिकाने लगाने के माकूल इंतजाम न होने की वजह से इनको जलाया जाता है, जिससे जहरीली गैस फ़ज़ा में शामिल होकर कई मूज़ी अमराज का सबब बन जाती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक के बैग्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर का कहना है कि मेरी तमाम ताजिर बरादरान से भी ये दरख्वास्त है कि वो प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करें या कागज़ और कपड़े के थैले के साथ इसको रिप्लेस करें और हर मुमकिन अपने माहौल को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। तमाम शहरियों से दरख्वास्त है कि वो प्लास्टिक के यूज़ से इनकार करें और उसके अल्टरनेट जो मेजर्स हैं उसको अपनाएं। प्लास्टिक के ये बैग शहरी इलाकों में सीवरेज सिस्टम की तबाही का बहुत बड़ा सबब हैं, जिनकी वजह से सीवरेज लाइन का बंद होना या फट जाना मामूल की बात है। इसके अलावा ये बैग फसलों को ज़मीन से मिलने वाले ज़ा की राह में बुरी तरह से हायल हो जाते हैं, जिनकी वजह से पैदावारी अमल मुतासर होता है। इसलिए इनके इस्तेमाल पर पाबंदी ऐड करना पंजाब हुकूमत का अच्छा और बेहतरीन फैसला है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रज़ा वट्टू, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। पिंडी गेप के इलाके लंगड़ियाल में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पिंडी गेप के नवाही गांव लंगड़ियाल में ज़मीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिससे फायरिंग के नतीजे में सरदार अजहर नामी शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी गेप मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक होने के बाद रावलपिंडी रेफर किया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। सादकाबाद में इलाका मकीन कहते हैं कि हमारे प्यारों की आखिरी आराम गाहें भी महफूज नहीं हैं। अहमदपुर लम्हा के पीर डाला शहीद कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर हर वक्त कब्रिस्तान में रहते हैं, कब्रों की बेहुरमती करते हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी की इस रिपोर्ट में। मर के भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा में पीर दादला शहीद कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से आए रोज जानवर कब्रों की बेहरमती कर रहे हैं और गलाजत फैला रहे हैं। इससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये अहमदपुर लम्हा का कदीमी कब्रिस्तान दादला शहीद है। इसमें 4 दीवारी ना होने की वजह से इसमें अपने आसपास से लोग जानवर बन जाते हैं और आवारा कुत्ते इस कब्रिस्तान की बेहुरमती करते हैं। तो आला हुक्काम से अपील की जाती है कि इसमें 4 दीवारी की जाए और इसको महफूज किया जाए। शहरियों का कहना है कब्रिस्तान के आसपास के इलाका मकीन कब्रिस्तान में अपने जानवर बांध जाते हैं, जो हर वक्त दादला शहीद कब्रिस्तान में गलाजत फैला रहे हैं। उनका मजीद कहना था पीर दादला शहीद कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से हमारे प्यारों की आखिरी आराम गाहें भी महफूज ना हैं। कब्रिस्तान इंसान की आखिरी आरामगाह होती है। पीर दादला शहीद कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने की वजह से जानवर कब्रों की बेहरमती करते दिखाई देते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से पीर दादला शहीद कब्रिस्तान अहमदपुर लम्हा की 4 दीवारी बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुकन कौमी असम्बली नीलम कुमारी की जानिब से उमरकोट की आवाम के दरपेश मसाइल मालूम करने के लिए कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उमरकोट जिला के मुख्तलिफ गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों के मसाइल मालूम किए और उनके लिए अहकामात जारी कर दिए। इस मौके पर खुली कचहरी से खिताब करते हुए MNA नीलम कुमारी ने कहा कि उमरकोट जिले के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ सिंध के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर मिले। उनका मज़ीद कहना था कि मैं आपसे ही हूँ और आपके दुख दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। उमरकोट की आवाम के दरपेश मसाइल को आला ऐवान तक पहुँचाऊँगी। गुज़िश्ता रोज़ मेट्रो 1 न्यूज़ हाफिज़ाबाद की खबर पर एक्शन लेते हुए MD पास्को इमाद नज़ीर का हाफिज़ाबाद में मुख्तलिफ पास्को सेंटर्स का हंगामी दौरा, पास्को सेंटर का रिकॉर्ड चेक किया और गंदम का मेयार चेक किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल MD इमाद नज़ीर के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वाज़ेह हदायत पर MD पास्को अम्माद नज़ीर का हाफिज़ाबाद के मुख्तलिफ सेंटर्स का हंगामी दौरा किया गया। बारदाने की तरसील को यकीनी बनाने के लिए MD पास्को अम्माद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, हमने अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया है जिसके अंदर मैक्सिमम फार्मर्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। मैक्सिमम 200 बैग इशू किए जाएंगे किसी भी फार्मर ग्रोअर को, और सिर्फ जो पास्को का एरिया है उसी के अंदर से हम ख़रीदेंगे और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे, और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी मुलाजिम के की तरफ से। जी बिल्कुल, आपने MD पास्को अम्माद नज़ीर की बात सुनी। उनका कहना था कि किसानों को बारदान के हसूल में जो मुश्किलात दरपेश है उनका फौरी अजाला किया जाएगा। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर बेटे समेत घर की ज़ियारत करके वतन वापस पहुंच गए। उम्रे की सादत हासिल करने पर पीपल्स पार्टी हारूनाबाद की क़यादत की तरफ से मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मलिक सलीम गुज़श्ता दिनों उम्रे की सादत हासिल करके वतन वापस पहुँच गए। मलिक सलीम के साथ उनके साहबजादे भी थे। हारूनाबाद पीपल्स पार्टी की क़यादत के ज़िले सदर पीपल्स पार्टी के रिहाइश का आमद अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत की सादत हासिल करने पर पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के सीनियर नायब सदर हाजी यासीन अब्बासी समेत दीगर क़यादत ने मलिक सलीम को मुबारकबाद दी। सियालकोट में मोहम्मद जाहिद उस्मान चिश्ती की मेज़बानी में हलोचक अड्डा साहू वाला में एक अज़ीमुशान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास, डॉक्टर पीर सलमान खादमी मिसबाही, साहबजादा अब्दुल हमीद चिश्ती और मुबलिग यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी पीर मोहम्मद इमरान आसी ने खुसूसी खिताब किया। ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हलोचक अड्डा साहूवाला के मलिका देहातों के सैकड़ों की तादाद में नौजवानों के अलावा सियासी समाजी फलाही रहनुमाओं, वकला, डॉक्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी समेत पंजाब भर से अहम शख्सियात ने शिरकत की। सियालकोट भर से आशिकाने रसूल टोलियों की शक्ल में पंडाल में शरीक होते रहे। मोहम्मद जाहिद उस्मान बट चिश्ती ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन दुनिया की बेहतरी, अपने सोने अल्लाह पाक, अपने आका मौला सैयदी मुर्शिदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करना है। केरपक्का में बाईपास रोड पर फरीद एक्सप्रेस के रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंग पर ना तो रेलवे फाटक है और ना ही कोई गेट, जबकि इस हाई पास रोड से भारी भरकम ट्रैफिक का गुजर होता है। शहरियों और इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद देखेंगे केरपक्का से अपने नुमाइंदे हसनैन खान रन की यह खुसूसी रिपोर्ट। मैसी रोड को खैरपुर रोड से मिलाने वाले बाईपास के करीब से गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस के ट्रैक पर अरसद रात से ना ही कोई गेट मैन तैनात किया गया है और ना ही रेलवे की जानिब से रेलवे फाटक बनाया गया है, जिसकी वजह से शहरियों और इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस रोड से भारी भरकम ट्रैफिक का भी दाखिला होता है, ताहम रेलवे फाटक न होने की वजह से शहरियों और इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों और इलाका मुकीनों का कहना है कि केरपक्का के मुतअद्दिद रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जहां पर ना तो गेट मैन तैनात किए गए हैं और ना ही रेलवे फाटक बनाए गए हैं। शहरियों और इलाका मुकीनों का मजीद कहना है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर हादसात भी रुनुमा हो चुके हैं, जिसमें इंसानी कीमती जानों का भी ज़िया हुआ है। इंतजामिया और रेलवे हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर हैं। शहरियों और इलाका मुकीनों ने इंतजामिया और रेलवे हुकाम से फौरी तौर पर रेलवे फाटक नस्ब करके गेट मैन तैनात करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, केरपक्का। मीरपुर खास के मकामी हॉल में ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर का नाम रोशन करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता जब्बार गुल ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट देखेंगे उवैस रजा मलिक के। मुनक़दा तकरीब के मेहमान खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गोरी, चेयरमैन एफस्मा सिंध सैयद तारिक शाह, रीजनल डायरेक्टर अब्दुल हादी दाऊद पोटा, रीजनल सदर फैसल खान जई और जब्बार गुल ने ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि मीरपुर खास हमेशा से खास है और शहर के तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस खास शहर मीरपुर खास को मजीद खास बनाने के लिए अपनी अपनी कोशिश करनी होगी। एफस्मा शहर भर में तालीम के शोबे में गिरा कदर खिदमत फराम कर रही है। तकरीब से मेहमान खास मेयर अब्दुल रऊफ गोरी का कहना था कि शहर भर में पीपल्स बस सर्विस के बाद सॉलिड
वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया जा रहा है। कारपोरेशन के लिए 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जल्द मंजूर हो जाएगा। जल्द बाजारों में वाशरूम और बंद डिस्पेंसरियां और दीगर बल्दियाती सहूलियात जल्द आवाम को मिल सकेंगी, जिसके लिए कारपोरेशन भरपूर कोशिश कर रही है। मुनक़िदा ईद मिलन पार्टी में मीरपुर खास के आर्टिस्ट जब्बार गुल को सदारती अवार्ड मिलने पर एप्समा की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में एप्समा के रीजनल सदर फैसल खान जई और दीगर ने आए हुए मेहमानों को अजरक के ताइफ पेश किए और शील्ड तकसीम की। तकरीब के दौरान मेयर अब्दुल रऊफ गोरी की सालगिरह का केक भी काटा गया और मुबारकबाद दी गई। तकरीब में आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मसूद अब्बास, नबीला जलील, उमर फारूक कुरैशी, जिशान उस्मानी, अवैस अहमद एडवोकेट और दीगर भी मौजूद थे। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। खैरपुर में 9वीं और 10वीं जमातों के सालाना इम्तिहानात जारी। इंटरमीडिएट बोर्ड सक्खर के वाइस चेयरमैन मुस्तफ़ा पीरज़ादा ने इम्तिहानी मरकज़ पर अचानक छापा मारा। इम्तिहानी मराकज़ पर अचानक छापों में 38 तलबा के कब्जे से नकल का मवाद बरामद कर लिया। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 लगाकर मरकज़ में नकल का मवाद ले जाने और गैर मुतल्लिक़ा अफराद के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद नकल माफिया सरगर्म है। सुपरिटेंडेंट स्लाटर हाउस साहिवाल डॉक्टर मोहम्मद इरफान और मोटरवे पुलिस बीट 15 साहिवाल के अफसरान ने मुर्दा लाखिर और बीमार मुर्गियां सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन की सरबराही में सुपरिटेंडेंट स्लाटर हाउस साहिवाल डॉक्टर मोहम्मद इरफान और वेटरनरी ऑफिसर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ गफूर के हमरा मोटरवे पुलिस के अफसरान के इतला पर नजर उकाड़ा टोल प्लाजा कार्रवाई करते हुए 2 अदद गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया, जिनमें तकरीबन 150 किलो मुर्दा और 250 किलो जिंदा मुर्गियाँ बीमार मुर्गियाँ बुरे वाला से लाहौर शहर सप्लाई की जा रही थी। मुर्दा और बीमार मुर्गियों को पुलिस की मौजूदगी में तलब कर दिया गया, जबकि मुलजिम जहांगीर और फरियाज बशीर अहमद को हवाला पुलिस कर दिया गया। मामूकांजन में बदचलनी के शुबे पर एक शख्स ने भाई की साली को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इलाका थाना मामूकांजन के नवाही गांव में लतीफ़ फजल गुलाम बाकर ने शुबे पर अपने भाई वजीर बाकर की साली फायजा को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में साबिक MPA हमीदा वहीदुद्दीन और जुबैदा खानम ने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया। हमीदा वहीदुद्दीन का कहना था कि दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त भाइयों को इस नए कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब शहरियों को जदीद तकाज़ों पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रही है, जिसमें तालीम सेहत के शोबजात को अहमियत दी जा रही है। तलम्बा में डाकू गन पॉइंट पर घर में घुस गए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर कानों से तलाई जेवरात नोच लिए। डाकू ने नकदी रकम 3,22,000 रुपए छीन लिए और फरार होने में कामयाब हो गए। चंद रोज़ कबल इसी शख्स की दुकान पर डकैती की वारदात हुई थी, जिसके मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। यूनाइटेड प्रेस क्लब तलम्बा सदर सैयद अल्ताफ़ हैदर सब्ज़वारी का मज़ीद कहना था कि आए रोज़ तलम्बा में डकैतों के वारदातें आम हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जहानियों में गंदम कटाई की मजदूरी मांगना जुर्म बन गया। बासर जमींदार का मजदूरों के घर धावा, अहले खाना पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जहानिया के नवाही गांव में बासर जमींदार ने अलीशान और अहले खाना वगैरह से गंदम की कटाई करवाई, जिसकी मजदूरी मांगने पर जमींदार तैश में आ गया और डंडों सोटों और कुल्हाड़ियों से मुसल्लह होकर साथियों समेत मजदूर अलीशान के घर धावा बोल दिया। अहले खाना को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, खवातीन के कपड़े फाड़ दिए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुँच कर दाई तबी इमदाद के बाद जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।